It seems when you look at the big picture, like Google missed the big moment and ChatGPT took it. A new artificial intelligence program called ChatGPT made its debut online. It's as revolutionary as the internet. नवंबर 30, 2022 को एक ऐसी चीज आई जिससे पूरी दुनिया चेंज हो गई और आज वो चीज का नाम सबकी जुबान में है, AI, जिसको फ्री में एक्सेस कर दिया OpenAI नाम की कंपनी ने थ्रू अ टूल कॉल्ड ChatGPT और सिर्फ एक दिन में ChatGPT के 0 से 1 मिलियन यूजर्स हो गए। बस फिर क्या, ChatGPT को जवाब देने के लिए गूगल ने भी अपना AI मॉडल रिलीज कर दिया, वो भी 3 डिफरेंट फ्लेवर के साथ, Gemini Pro, Gemini Ultra एंड Gemini Nano। बट दिक्कत ये थी कि गूगल ने 1 साल लगा दिया अपना AI लॉन्च करने में एंड दे मिस द बिग मोमेंट। लेकिन इस बार गूगल ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। 13 मई को OpenAI ने अपना नया AI मॉडल रिलीज किया GPT-4o और उसके कुछ ही घंटों बाद गूगल ने भी गूगल I/O इवेंट में अपने AI मॉडल्स रिलीज कर दिए, वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे। टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, AI एजेंट, गूगल इस बार पूरी तैयारी के साथ आया। बट हु इज बेटर? क्या गूगल का नया टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल OpenAI के 16 से बेटर है? क्या OpenAI के पास गूगल जितना पैसा, गूगल जितने रिसोर्सेज, गूगल जितना डेटा, गूगल जितने यूजर्स हैं? Let's compare OpenAI's new AI model with Google's new AI models. Either by voice or by text, or ideally like some other, it just kind of knows what I want. Have this like constant thing helping me throughout my day that's got like as much context on as possible. It's like the world's greatest assistant. So GPT-4o रिलीज करने से 2 दिन पहले ही सैम ऑल्टमैन ने हिंट दे दिया था कि दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट असिस्टेंट और फिर 13 मई को OpenAI के इन लाइव डेमो वीडियोस ने सबको शॉक कर दिया। OpenAI ने अपना न्यू AI मॉडल रिलीज कर दिया GPT-4o, वेयर O स्टैंड्स फॉर ओमनी मॉडल, जिसका मतलब ये मॉडल वॉइस, विजन, टेक्स्ट सब सपोर्ट करेगा और समझेगा इन रियल टाइम। चेक आउट दिस वीडियो जिसमें GPT-4o की ये वॉइस मॉडल रियल टाइम रेस्पॉन्स दे रही है और इसकी आवाज बिल्कुल नेचुरल साउंड कर रही है। Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert. और इस GPT-4o के वॉइस मॉडल की सबसे खास बात ये कि आप इसको बीच में इंटरप्ट कर सकते हो और अब आपको उसके सेंटेंस खत्म होने का वेट नहीं करना होगा जैसे आप पुराने मॉडल में करते थे। Vipe was a curious robot. Always explore. Started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. There was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. और बस यही नहीं, OpenAI ने ChatGPT-4o की कैपेबिलिटीज के 20 से भी ज्यादा लाइव डेमोस वाले वीडियोस पोस्ट किए। चेक आउट दिस वीडियो जिसमें ये बंदे के इमोशंस तक डिटेक्ट कर ले रही है। So here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? There we go. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood. और अगर आपको लग रहा है कि इस AI वॉइस में कोई वेरिएशंस नहीं होंगे तो आप गलत सोच रहे हो। ये देखो। But I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Once upon a time, in a world not too different from ours. No, Byte. ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness. Once upon a time, in a world not too different from ours. ये तो हुआ वॉइस मॉडल। GPT-4o का विजन मॉडल और भी जबरदस्त है। अपने फोन का कैमरा ओपन करो और जो चीज दिखा के सॉल्व कराना चाहते हो सब सॉल्व कर देगा ये इन रियल टाइम। Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. एक और शॉकिंग डेमो OpenAI ने रिलीज किया जिसमें GPT-4o का विजन मॉडल इस बच्चे की मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है और सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा बल्कि फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ के उसको समझा भी रहा है। Hello there. I'm here with my son and I'd love you to tutor him on this math problem. But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? Alright, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. Correct. अब सोचो ये चीज जब बच्चों के हाथ में लग गई तो ये कितनी यूजफुल होगी। किसी को अपने कोचिंग में लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है, बच्चे जब मन चाहे इसको तब यूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और टीचर भले आंसर देने में टाइम लगा दे बट ChatGPT-4o बहुत स्पीड है। इसके वॉइस और विजन मॉडल का वेट करो, OpenAI इसको आने वाले हफ्तों में रिलीज करने वाला है। लेकिन अभी आप जो फ्री में यूज कर सकते हो वो है ChatGPT-4o का टेक्स्ट मॉडल और OpenAI का कहना है कि ये मॉडल पुराने वाले मॉडल से बहुत स्पीड है। एंड बिलीव मी, मैंने एक ही सेम प्रॉम्प्ट दोनों मॉडल में
डाल के देखा एंड गेस व्हाट, ये मॉडल सच में बहुत स्पीड है, इवन द लॉजिक वाज आल्सो बेटर। अब बात करते हैं गूगल की, जिसने गूगल I/O इवेंट में अपने इतने AI मॉडल्स रिलीज कर दिए जिसको आप गिन के थक जाओगे। जेमिनी 1.5 फ्लैश, जेमिनी 1.5 प्रो, जेमिनी एडवांस, जेम्स, गूगल AI स्टूडियो, वर्टेक्स AI, इमेजिन 3, जेमिनी नैनो, दिस लिस्ट जस्ट गोज ऑन। गूगल का ये इवेंट 2 घंटे का था क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ही बहुत थे और गूगल ने इस इवेंट में 120 बार AI बोल दिया। That might be a record in how many times someone has said AI. सॉरी, 121 बार। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट एस्ट्रा की, जिसको गूगल्स डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हसाबिस ने रिवील किया। प्रोजेक्ट एस्ट्रा एक AI एजेंट है जो आपके साथ रियल टाइम में देख सकता है और सुन सकता है और आपके कहने पे एक्शन ले सकता है। Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high frequency sounds. ये डेमो देख के आपको पता चल रहा होगा कि गूगल का प्रोजेक्ट एस्ट्रा चैट GPT 4o के विजन मॉडल से compete कर रहा है। बट जब आप चैट GPT 4o के लाइव डेमो को प्रोजेक्ट एस्ट्रा से कंपेयर करोगे तब आपको प्रोजेक्ट एस्ट्रा थोड़ा फीका लगेगा, क्योंकि ना ही ये उतना रियल टाइम रिस्पॉन्स दे रहा है, ना ही ये बीच में इंटरप्शंस हैंडल कर पा रहा है और ना ही इसकी वॉइस में वेरिएशंस देखने को मिली। यही तो दिक्कत है गूगल की, इन लोग एक साथ इतने प्रोडक्ट्स में फोकस कर रहे हैं कि चैट GPT के सामने स्टैंड आउट ही नहीं कर पा रहे। बट गूगल हार मानने को तैयार ही नहीं है, वो ओपन AI के सामने अपना AI मॉडल लाते ही जा रहा है और इस बार गूगल ने अपना टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल भी रिवील कर दिया Veo, जो सीधा ओपन AI के Sora से compete कर रहा है। चेक आउट दिस वीडियो एग्जांपल्स व्हिच इज जनरेटेड बाय Veo, गूगल्स टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल। Veo आपको हाई क्वालिटी 1080p वीडियो जनरेट करके देगा फ्रॉम टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो प्रॉम्प्ट्स, और ये 1 मिनट से भी बड़ा वीडियो जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप Veo के वीडियोस को Sora AI से कंपेयर करोगे तो आपको Sora AI की क्वालिटी कई ज्यादा अच्छी लगेगी। इसमें देखो, लेफ्ट साइड वाला वीडियो Veo से जनरेट हुआ है एंड द राइट वन इज जनरेटेड बाय Sora AI, जिसकी क्वालिटी एकदम रियलिस्टिक है। इवन द शैडो इन दिस वीडियो इज ऑलमोस्ट परफेक्ट एंड द फिजिक्स आल्सो सीम्स बेटर इन द Sora AI। और आपको तो पता ही है कि जब Sora AI ने अपने वीडियो सैंपल्स अचानक से रिलीज किए थे तब पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक हो गई थी और ओपन AI ने तो रनवे ML को बिना रिलीज के ही पीछे छोड़ दिया। बट गूगल का Veo इतना भी बुरा नहीं है, इट इज वे बेटर देन रनवे ML एंड नेक्स्ट बिहाइंड टू ओपन AI Sora। ये तो हुआ गूगल का टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल। गूगल ने अपना टेक्स्ट टू इमेज मॉडल भी रिवील कर दिया जिसका नाम है इमेजिन 3। इमेजिन 3 गूगल का अब तक का सबसे कैपेबल और हाई क्वालिटी इमेज जनरेशन मॉडल है और इसकी इमेजेस काफी रियलिस्टिक है। चेक आउट दिस इमेजेस जो इमेजिन 3 से जनरेट हुई है। Imagen 3 is more photorealistic. You can literally count the whiskers on its snout, with richer details like this incredible sunlight in the shot, and fewer visual artifacts or distorted images. और गूगल का कहना है कि ये उनका बेस्ट मॉडल है टेक्स्ट इमेज रेंडर करने में और ये मिड जर्नी से भी बेटर है इस कैटेगरी में। चेक आउट दिस ट्वीट जिसमें इमेजिन 3 को मिड जर्नी V6 से कंपेयर किया विद सेम प्रॉम्प्ट, और आप देख सकते हो कि इमेजिन 3 ने एकदम सही टेक्स्ट के साथ इमेज जनरेट की, वेयरएज मिड जर्नी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। और सिर्फ टेक्स्ट वाली इमेज ही नहीं, अगर नॉर्मल इमेजेस भी आप मिड जर्नी से कंपेयर करोगे तो इमेजिन 3 काफी रियलिस्टिक है और ये मिड जर्नी के आसपास ही है। इसको आपको यूज करना है तो आप labs.google में जाके इमेज FX में इमेजिन 3 की वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यही तो दिक्कत है गूगल की, 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए बट उनको पब्लिक कब करोगे? एनीवेज, गूगल ऑल्सो शोड ऑफ देयर न्यू AI ओवरव्यू फीचर जो जल्द ही गूगल सर्च इंजन में आने वाला है और इन्होंने इस फीचर का नाम मल्टीपल स्टेप रीजनिंग रखा है, जिसका मतलब अब आप गूगल सर्च में जाके 10 क्वेश्चंस एक साथ पूछ सकते हो और फिर गूगल आपके लिए रिसर्च करेगा और आपके सब क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देगा इन प्रॉपर वे। चेक आउट दिस डेमो वीडियो जो गूगल ने शो किया। Soon you'll be able to ask Search to find the best yoga or Pilates studios in Boston and show you details on their intro offers and the walking time from Beacon Hill. You get some studios with great rating and their introductory offers, and you can see the distance for each. Like this one, it's just a 10-minute walk away. Right below, you see where they're located. laid out visually. To be honest, Google का ये फीचर भी मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्योंकि ये अभी भी एज अ आंसर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है एंड इफ समवन इज यूजिंग AI उसको इतने ऑप्शंस नहीं चाहिए। मैं AI यूज कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू सेव माय टाइम, सो सीधा मुझे एक आंसर दो, बात खत्म, एंड दैट इज व्हाई आई यूज ChatGPT इंस्टेड ऑफ गूगल मोस्ट ऑफ द टाइम। गूगल अगर कहीं आगे तो आई थिंक गूगल वर्कस्पेस में, क्योंकि गूगल के डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स को हम सब ने यूज किया है और कर रहे हैं एंड वी हैव द ट्रस्ट ऑन देम, और गूगल इसी चीज का फायदा उठाएगा क्योंकि उनको पता है कि
कि उनके जितने यूजर्स अभी चैट जीपीटी के पास नहीं है, और इसलिए गूगल अब अपना जेमिनी एआई मॉडल आपके सारे फेवरेट वर्कस्पेस एप्स में ला रहा है, लाइक जीमेल, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव एंड इवन गूगल फोटोज। हियर्स द कूल डेमो जो गूगल ने शो किया, जिसमें आप गूगल फोटोज में अब आस्क योर फोटो फीचर यूज करके अपनी फोटो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। Say you're at a parking station ready to pay. Now you can simply ask photos. It knows the cars that appear often. It triangulates which one is yours and just tells you the license plate number. ये तो फीचर था गूगल फोटोज का, लेकिन अब आपके जीमेल में भी जेमिनी एआई आने वाला है। और अगर आप सोच रहे हो कि व्हाट इज जेमिनी, तो जेमिनी गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे ओपन एआई का लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी है। सो अब आपके जीमेल के साइड पैनल में जेमिनी 1.5 प्रो आने वाला है, जिसमें आप अपने ईमेल से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। सपोज आपके बहुत सारे ईमेल्स में से आपको किसी एक कंपनी के मेल्स की पूरी समरी चाहिए, तो आपको बस उस कंपनी का नाम लिख देना है, बस फिर जेमिनी आपको पूरी समरी दे देगा। जिसका मतलब अब आपको एक एक ईमेल्स में से क्या क्या रिप्लाई आया है वो क्लिक नहीं करना पड़ेगा। गूगल ने ये भी रिवील किया कि वो एआई एजेंट्स में काम कर रहे हैं, जो आपके लिए एक बार में मल्टीपल चीजें करेंगे। सपोज आपने कोई शूज मंगवाया और आपको वो फिट नहीं हुआ, आप गूगल के एआई एजेंट को बोल सकते हो, हे आई वांट टू रिटर्न दिस, दे आर टू स्मॉल। फिर क्या, ये एआई एजेंट आपके ईमेल इनबॉक्स में उस शूज के ऑर्डर की डिटेल्स निकालेगा कि शूज कहां से आया है, कितने का है, फिर कस्टमर सपोर्ट डिटेल्स निकालेगा, फिर उनको कांटेक्ट करेगा और शूज रिटर्न करा के रिफंड करवा देगा। आने वाले टाइम में हम सबके पास अपने एआई एजेंट्स होंगे। एक और प्रोडक्ट जो गूगल का मुझे अच्छा लगा है वो है जेमिनी नैनो, जो स्पेशली आपके एंड्रॉइड फोन में यूज करने के लिए बना है। इसमें एक फीचर आने वाला है टॉक बैक, जो आपको स्कैम और फ्रॉड कॉल से बचाएगा। Private number appears on the screen. Hello? Hi, I'm calling from Safemore Bank Security Department. Am I speaking to Dave? Yeah, this is Dave. Kind of in the middle of something. We've detected some suspicious activity on your account. It appears someone is trying to make unauthorized charges. Oh yeah, what kind of charges? I can't give you specifics over the phone, but to protect your account, I'm going to help you transfer your money to a secure account we've set up for you. A warning flashes. लेकिन यार गूगल ने इसको भी रिलीज नहीं किया, ये भी आने वाला है। ओ कम ऑन गूगल, कुछ तो ऐसी चीज बताओ जिसको हम अभी यूज कर सके। इमेजिन 3 वेट लिस्ट, वीओ वेट लिस्ट, जेमिनी मॉडल ऑन गूगल वर्कस्पेसेस वो भी वेट लिस्ट। यहाँ पे मुझे ओपन एआई बहुत मस्त लगती है। उन लोगों ने चैट जीपीटी 3.5 फ्री कर दिया, डाली फ्री कर दिया, और अब चैट जीपीटी 4o जो अब तक का उनका सबसे फास्टेस्ट मॉडल है वो भी फ्री कर दिया। और मुझे लगता है कि यही ओपन एआई की बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर आप अपने सबसे अच्छे मॉडल का एक्सेस फ्री में दे दोगे और अगर वो आपके यूजर्स को यूजफुल लगे तो वो आपके पेड यूजर्स भी जरूर बनेंगे। और यही रीजन है कि मैं भी चैट जीपीटी प्लस का एक्सेस लेके रखा हूँ। देखो गूगल एक जायंट कंपनी है और उसके पास बिलियन यूजर्स है, हम सबको पता है, और इसलिए गूगल भी यही चाह रहा कि वो अपने इस बिलियन यूजर्स को जल्द से जल्द अपने एआई प्रोडक्ट्स का एक्सेस दे। बट आई थिंक गूगल इतनी सारी चीजों में दिमाग लगा रहा है कि वो किसी एक चीज में बेस्ट बन ही नहीं पा रहा है। और वहीं आप ओपन एआई को देखोगे तो ओपन एआई सिंगुलरली फोकस्ड, उनके पास कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं बट दे आर द बेस्ट इन द मार्केट। और ओपन एआई एक एआई कंपनी है जिसके पास पैसे और टैलेंट दोनों की कमी नहीं है, और यही रीजन है कि वो इतना फास्ट ग्रो कर रही है। एंड दे हैव द बेस्ट सीईओ Sam Altman. Whether we burn 500 million a year or 5 billion or 50 billion a year, I don't care. I genuinely don't. As long as we can, I think, stay on a trajectory where eventually we create way more value for society than that, as long as we can figure out a way to pay the bills, we're making AGI. It's going to be expensive. It's totally worth it. Thanks to everyone अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा। I hope you find this video valuable. ऐसे और भी AI अपडेट्स मैं हर हफ्ते लाते रहूंगा। ओपन एआई की तरह ये पेज भी पूरा एआई फोकस्ड है और इसमें आपको सिर्फ रियल वैल्यू मिलेगी। लिख के ले लो, एआई आपको रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।